आप ते कांग्रेस दे विचाले छिड़ी नवी सियासी जंग। राघव चड्ढा दा दावा, चन्नी सरकार दे 4 मंत्री संपर्क दे विच तां वेरका दा पलटवार। कांग्रेस नहीं आप दे कई आगू पार्टी छड्डण नूं काले। दिल्ली मोर्चा फतेह करन तो बाद दरबार साहिब नतमस्तक होए किसान। राज्यपाल सने कई वड्डे आगूआं ने जित दे लई कीता शुकराना। एसजीपीसी वल्लों कीता गया सन्मानित। टिकरी तो बाद ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਲਦ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਰੀਕੇਡ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇਬ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਲਦ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੈਕਸ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ। कंगना रनौत ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਭਰਤੀ। पंजाब दी हरनाज कौर बनी मिस यूनीवर्स। 21 साल बाद भारत नूं मिलिया खिताब। फाइनल दे विच 78 देशां दीआं सुंदरियां नूं पछाड़ के जित्तिया ताज। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू और खबरां दी शुरुआत सब तो पहला अखाड़ा 2022 तो करांगे क्योंकि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ कोई लीडर आप दे विच नहीं जा रहा है। वेरका दा कहना है आप नूं छड्ड के विधायक जिहड़े ने ओह कांग्रेस दे विच शामिल हो रहे ने और लगातार बयान आ रहे ने कांग्रेस दे ते नाल ही आम आदमी पार्टी दे भी ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੇਰਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। पंजाब आम आदमी पार्टी के को इंचार्ज राघव चड्ढा ने एक वड्डा बयान दिता है कि कांग्रेस के 4 मंत्री आम आदमी पार्टी के संपर्क दे विच ने। मेरे नाल कैबिनेट मंत्री ने राजकुमार वेरका। वेरका साहब 4 मंत्री तुहाडे जिहड़े ने वो आम आदमी पार्टी के संपर्क च ने। राघव चड्ढा कह रहे हैं यार राघव ਚੱਡੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰੋਜ਼ ਤਪਲਾ ਖੜਕਣ ਡਿਆ, ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ 4 ਤੀਲੇ ਕਿਤੇ 4 ਤੀਲੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 6 ਐਮਐਲਏ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਡ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। लेकिन राघव चड्ढा के बयान कितना क दम है? वो कह रहे कि 4 मंत्री रेत माफिया च इन्वॉल्व है, इस करके असं लेना नहीं चाहते। सुन ला भाई, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ? ਬਈ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕ ਦਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮ
ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। लेकिन इस तरीके का बयान क्यों दिता गया कि इस बयान की वजह की रही है? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ? ਉਹ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਹੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੜਕਣ ਵਾਲੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, बोल रहे हैं। खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, बिना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुअन, उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। साथियों, बाबा के साथ अगर किसी और का योगदान है तो वो बाबा के गणों का है। बाबा के गण यानी हमारे सारे काशीवासी, सारे काशीवासी जो खुद महादेव के ही रूप है। जब भी बाबा को अपनी शक्ति अनुभव करानी होती है वो काशी वासियों का माध्यम ही बना देते हैं। फिर काशी करती है और दुनिया देखती है। इदम शिवाय इदम नमः, इदम शिवाय इदम नमः। भाई और बहनों, मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और इन सबके साथ मैं यूपी सरकार, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा
संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों ने आखिर में क्या कहा? नेति नेति ही कहा है। यानी जो कहा उतना ही नहीं है, उससे भी आगे कितना कुछ है। हमारे शास्त्रों ने कहा है, शिवम ज्ञायन इति ब्रूयो, शिवः शब्दार्थ चिंतका, अर्थात शिव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शिव को ही ज्ञान कहते हैं। इसलिए ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है। और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपु, अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा ही शरीर है। इसलिए यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर है। इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं और इसी भाव से हमें अपने देश के कण कण में मातृभाव का बोध होता है। हमारे शास्त्रों का वाक्य है,
दृश्यते सवर्ग सर्वे है काश्यम विश्वेश्वर तथा, यानी काशी में सर्वत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं। इसलिए काशी जीवत्व को सीधे शिवत्व से जोड़ती है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है, विश्वेश्वरम शरणम समय बुद्धि प्रदास्यति, अर्थात भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर समबुद्धि व्याप्त हो जाती है। बनारस वो नगर है जहां से जगत गुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। यहीं की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। समाज सुधार के लिए कबीरदास जैसे मनीषी यहां प्रकट हुए। समाज को जोड़ने की जरूरत थी तो संत रविदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी ये काशी बनी। ये काशी अहिंसा और तप की प्रतिमूर्ति 4 जैन तीर्थंकरों की धरती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य और रामानंद जी के ज्ञान तक, चैतन्य महाप्रभु और समर्थ गुरु रामदास के से लेकर स्वामी विवेकानंद और मदन मोहन मालवीय तक कितने ही ऋषियों और आचार्यों का संबंध काशी की पवित्र धरती से रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां प्रेरणा पाई। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक कितने ही सेनानियों की कर्मभूमि जन्मभूमि काशी रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खान जैसी प्रतिभाएं इस स्मरण को कहां तक लेते जाए, कितना कहते जाए, भंडार भरा पड़ा है। जिस तरह काशी अनंत है वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है। काशी के विकास में इन अनंत पुण्य आत्माओं की ऊर्जा शामिल है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की विरासत शामिल है। इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्ग के लोग यहां आते हैं तो यहां से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। साथियों, काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजधानी तो है ही, ये भारत की आत्मा का एक जीवंत अवतार भी है। आप देखिए, पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहल्याबाई होलकर ने करवाया। जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी, उन माता अहल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया था, तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है। साथियों, बाबा विश्वनाथ मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 23 मण सोना चढ़ाया था। इसके शिखर पर सोना मढ़वाया था। पंजाब से पूज्य गुरु नानक देव जी भी काशी आए थे, यहां सत्संग किया था। दूसरे सिख गुरुओं का भी काशी से विशेष रिश्ता रहा था। पंजाब के लोगों ने काशी के पुनर्निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया था। पूरब में बंगाल की रानी भवानी ने
बनारस के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पण किया। मैसूर और दूसरे दक्षिण भारतीय राजाओं का भी बनारस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक ऐसा शहर है जहां आपको उत्तर, दक्षिण, नेपाली, लगभग हर तरह की शैली के मंदिर दिख जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर इसी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है और अब ये विश्वनाथ धाम परिसर अपने भव्य रूप में इस चेतना को और ऊर्जा देगा। साथियों, दक्षिण भारत के लोगों की काशी के प्रति आस्था, दक्षिण भारत का काशी पर और काशी का दक्षिण भारत पर प्रभाव हम सब भली भांति जानते हैं। एक ग्रंथ में लिखा है, तेनो पयाथेन कदाचनात् वाराणसीम पाप निवारणम आवादी वाणी बलिना सविष्यन विलोक्य लीला वासरे विलिप्ता। कन्नड़ भाषा में कहा गया है, यानी जब सदगुरु माधवाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काशी के विश्वनाथ पाप का निवारण करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को काशी के वैभव और उसकी महिमा के बारे में भी समझाया। साथियों, सदियों पहले की ये भावना निरंतर चली आ रही है। मां कवि सुब्रमण्यम भारती काशी प्रवास ने जिनके जीवन की दिशा बदल दी, उन्होंने एक जगह लिखा है, तमिल में लिखा है, काशी नगर पुलवर पेसुम उरई दान कांजी इल के पदर कौर खरूबी सेवोम। यानी काशी नगरी के संत कवि का भाषण कांचीपुर में सुनने का साधन बनाएंगे। काशी से निकला हर संदेश ही इतना व्यापक है कि देश की दिशा बदल देता है। वैसे मैं एक बात और कहूंगा, मेरा पुराना अनुभव है, हमारे घाट पर रहने वाले, नाव चलाने वाले कई बनारसी साथी तो, और आपने भी कभी अनुभव किया होगा, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम इतनी फर्राटेदार तरीके से बोलते हैं कि लगता है कि कहीं केरला, तमिलनाडु या कर्नाटक तो नहीं आ गए। अब जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार